नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जर्कन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं। वो रिटेल के महागुरु हैं। रिटेल में उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम किया है, बहुत बड़े-बड़े ब्रांड के साथ में उन्होंने काम किया है, जो चाहे टाटा हो या बाटा हो या रिलायंस हो, कोई भी ऐसी जानी-मानी कंपनी नहीं है जिनके साथ में उन्होंने वर्क नहीं किया है। तो आज उनके एक्सपीरियंस का हम लोग फायदा उठाते हुए आज हमारे साथ में वो बने हुए हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि रिटेल स्टोर को कैसे ओपन किया जा सकता है और कैसे उसे जो है अर्श तक ले जाया जा सकता है, कैसे उसे सफलता के अंबार हम लोग जो है छू सकते हैं एक रिटेल स्टोर खोलकर। तो आज हमारे साथ में बने हुए हैं भास्कर चटर्जी। तो स्वागत करते हैं भास्कर जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार भास्कर जी। Thank you, Mukesh ji. Oh, thank you for calling me to your blog. Well, I'm a management graduate and started my career with Unilever जी with soaps and detergent in their sales division. okay. Having spent couple of years with them, I moved on to Bata India Limited. जी Spent a long innings, and I have been to the retail manager and from the Western Zone, and spent about more than a decade. Then I went to Raymond's Limited as a head retail operations based out of Bombay. Again, spent decades of time in the organization, and then move on to Reliance for some time, and then S. Kumar Unimart Group for some time. Then I had been into the profession of teaching and sharing my knowledge with the industries and a kind of a staff. I will share the learning out of sheer experience that I have gone through in more than 3 decades in the industries. तो जो कुछ भी हमने सीखा है आज, ये मैंने धूप और छांव और बारिश में घसीट के सीखा हूँ जी. So I'll share my the ground reality. Now the first thing that you have asked me that how to set up a retail store. जी sir. Well, now retail has now become the big name in our country in last few decades, and it has made a significant progress and growth in the Indian economy. Now, if I say that right from international brand to Indian big giants and corporates, and from then to the mom and pop stores and so-called the neighborhood stores, nobody is lagging behind. Each one of them is trying to make their footprint into the industry. And I must say each one of them has made a significant contribution to the growth of the economy. जी. So that is what is the scenario today. आज का ये situation है. लेकिन इसमें ये है कि जब हम स्टोर सेटअप करते जाते हैं तो आई हैव गॉट समथिंग इन माय माइंड. कुछ वरीज होते हैं, कुछ थॉट प्रोसेस होता है, कुछ सोच होते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू मेक माय इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल, हाउ टू मिनिमाइज माय रिस्क, and I must do something so well that it has a long sustainability in the long term. So पहले तो जो इन्वेस्टर है जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं क्या धंधा करूं, व्हाट इज माय मर्चेंडाइज एंड द रेंज सिलेक्शन मेरा पास, मैं क्या बेचूं, मैं कार बेचूं या मोबाइल फोन बेचूं या so lot of anxiety has regarding the selection of the merchandise. So first he understands what product he can handle, that is one. Second, he thinks that what is my margin in terms of the per unit margin, what would be my total volume of sale. जी. क्योंकि जितना सेल होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा, जितना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा मेरा नेट प्रॉफिट का चांसेस भी उतना ज्यादा होता है जी. So then he wants to understand कि भाई मेरा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या होगा. Then he starts thinking भाई what would be my investment, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इतना कैपिटल मेरे पास है क्या, because I have to keep some capital for tomorrow as well. So ओन फंड होगा, बोरोड फंड होगा या ओन प्लस बोरोड फंड होगा, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स उसको
कर लेना चाहिए. जी. Once he does it, then he has to think of getting a good property where he is going to have his brick and mortar retail store. Okay. And ultimately he has to calculate the return on investment. जी. क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके एडिक्वेट रिटर्न नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है. जी, बिल्कुल बिल्कुल. So he has to very thoughtfully, work out the return on investment. And if he thinks that he is getting adequate and healthy return जी. out of his investment, then he thinks that he is okay with the kind of a project, right? Okay. Sorry. No अगर problem. ये प्रोजेक्ट बैठ गया उसके दिमाग में तो व्हाट ही डज, ही गोस फॉर द प्रॉपर्टी. Okay. कौन सा टाउन पे जाएगा, उस टाउन पे कौन सा मार्केट पे जाएंगे, उस मार्केट के कौन सा स्ट्रीट या लोकेशन पे मार्केट में जाएंगे, दैट ही हैज टू टेक ए कॉल. Once that is finalized, the next stage is a selection of the property. Okay. इसमें क्या होता है, what is the size of the the store that is getting, is it adequate? So that is one consideration. Second is that what is the visibility of the the properties. अगर once you have the store there, इस स्टोर का विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए. विजिबिलिटी अच्छा होने से क्या होता है कि कस्टमर हैज द कॉन्फिडेंस टू एंटर द स्टोर, फुटफॉल बढ़ जाता है. जी जी जी. So that is a very considerable thought. Then he has to finalize the property with the terms. रेंटल होगा कि डिपॉजिट कितना होगा या खरीदेगा कि नहीं. So all that thing in place and ultimately acquire the property. So selection of the site हो गया, उसका जहाँ पे वो स्टोर ले रहा है उसका कैचमेंट एरिया क्या है, डज इट फिट इनटू हिज प्रोडक्ट कैटेगरी. वहाँ के जो आदमी जो है कस्टमर, जिनको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है उनका लाइफस्टाइल क्या है, स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, वहाँ पे फेस्टिवल इम्पैक्ट होता है कि नहीं. ऑल दैट पुट टुगेदर इज द बास्केट ऑफ बिजनेस, राइट. So once he's convinced about that area, about that property, he acquires that property. Then what he does, he goes for a store design. जी. कि स्टोर डिजाइन क्या होगा, व्हाट विल बी द फिजिकल लेआउट ऑफ द स्टोर, प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ होगा, कैशियरिंग कहाँ होगा, अगर ऑफिस एरिया है, प्रोडक्ट डिस्प्ले है, विंडो डिस्प्ले है, ऑल दैट थिंग ही हैज टू प्लान इन a planogram manner. And then he has to go for actual fit out. स्टोर सेटअप अब करे जहाँ पे फिक्सचर्स, फिटिंग, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, other expenditure and investment that he has to put into the business to run the store with a good look and feel. So he does that. At the same time, then he has to look for the staff. That is a very critical selection of the people, because at the end of the day, it is these people who is going to serve to the customer and make customer happy and ensure that this customer comes back again and again to the store, so that there is a repeat purchase and keeps on happening in the store. That is what the success. तो ये सब चीज वो होने के बाद वो एक्चुअली स्टोर सेटअप करता है. He places the physical merchandise to have the reach of the customer, उसका विजुअल इम्पैक्ट, उसके इन स्टोर मर्चेंडाइजिंग, उसका प्रोमो मटेरियल या जो भी वो कैंपेन चल रहा है, promotions, campaigns, all that thing he has to put in the stores so that the store looks full, impactful and eventful, and it's a very interactive kind of a thing कि customer दुकान में आए and he feels that I am at the right place. That is what is the approach, the store design, fit out, presentations of merchandise, the look and feel, the lights, the colors, the ambience, everything should be absolutely brilliant while you are offering to the customer. जी. Having done that, then there is a eventful store opening. हमने तो सब कुछ कर लिया. The store opening itself, basically you invite the nearby people, inviting people from your catchment area,
inviting people from your friends, neighbors, family, relatives, all that people invite to the stores and have a good selling experience on the day. And then it goes on, but it goes on with the continuous promotion because it is a newborn retail store. Not many people will know about it. Yeah. So to have it more popular, so one has to continuously go for the promotion of the stores, availability of the merchandise. If there is a discount, if there is a promotions, anything that is happening, the owner and the investors or the manager has to run it always. Then they have to monitor the performance of the store. हमने तो सब कुछ कर लिया, पैसे मैंने लगा दिया, माल भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया, but end of the day it has to generate the business. तो उस बिजनेस को मॉनिटर करे, अपना टारगेट ले कि मंथली टारगेट क्या होगा, फोर्टनाइटली, वीकली, डेली टारगेट क्या होगा और वो अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी. ऑन द अदर हैंड ही हैज टू मॉनिटर द फुटफॉल कि कितने कस्टमर दुकान पे आ रहे हैं एंड उसका कन्वर्शन रेट क्या है. तो देयर हैज टू बी a continuous monitoring of these MIS so as to know which direction the store is going. And if he thinks that he is meeting the target or he is exceeding the target or he is below the target, exceeding target is nice, बहुत खुशी की बात है, everything is going good. Exceeding target means आपका स्टाफ अच्छा है, आपका सिलेक्शन मर्चेंडाइज अच्छा है, आपका प्राइस, क्वालिटी, डिस्प्ले सब अच्छा है, फुटफॉल अच्छा है. That is how and why you are exceeding the target. But if it is not happening, then he has to plan the corrective action. So therefore, what I am saying is a continuous process of evaluation so as to know that you are into the right track and it has then a sustainable approach. हाँ ये long term हमारा ये धंधा चलेगा. That is what basically the guideline for the store opening. Yes. जी, बहुत बढ़िया भास्कर जी, आपने बहुत अच्छे से जो है एक पूरा ब्लूप्रिंट बना के सामने हमारे व्यूअर्स के सामने रख दिया कि अगर स्टोर ओपन करना है तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए. आपने ए से लेके जेड तक सब चीजों को टच किया, चाहे वो आपने इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्टाफ हियरिंग हो, सब चीजों को आपने यहाँ पे टच किया. तो अभी हम कुछ पेन पॉइंट्स भी उठाएंगे जो रिटेलर्स के होते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट जिन पर उन्हें फोकस करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन चीजों को करते हुए. तो वो मैं कुछ क्वेश्चन से शुरू करूंगा. तो सर सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं कि जब एक जो एंटरप्रेन्योर है तो वो इन्वेस्टमेंट जब करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए. सर इसके बारे में थोड़ा बताएं. Well, it is a good question, Mukesh ji. Because this is one area जहाँ अक्सर मिस्टेक होता है and then corrections are very difficult. जी. तो जब हम देखिए इसमें 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट है. वन इन्वेस्टमेंट है जब आप प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, उसमें आपका एडवांस जा सकता है. अगर आउटलेट खरीदते हो तो आपका बल्क अमाउंट ऑफ मनी गोज इनटू बाइंग इट. इफ इट इज ऑन रेंटल तो आपके गुड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी एडवांस आपका चले जाए. तो दैट इज वन. सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज ऑन स्टॉक. जी, कि आप कितना माल खरीदोगे, राइट. कितनी धंधा के लिए कितना माल खरीदना चाहिए, कि अगर हम 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो हमको कितना रुपए का स्टॉक रखना चाहिए. जी. सो ही हैज टू अंडरस्टैंड दैट. इसके गाइडलाइन भी है. आई विल शेयर द गाइडलाइन. इसका राइट अप्रोच क्या है. जी. एंड थर्ड इज दैट योर फिट आउट कॉस्ट. राइट. So investor has to minimize the one in fit out cost, क्योंकि हर एक 4, 5, 6 साल में दुकान रिनोवेट करना पड़ता है. तो पहली बार अगर सारा पैसा या ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लगा दिया, फिर हमको 5 साल बाद जब रिनोवेट करना होगा तो हमारे पास पैसा का प्रॉब्लम हो सकता है. जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर. तो अगर जरूरत नहीं है तो मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों इन्वेस्ट करूं उस तक.
So it has to be cost effective but well presented store. A nice store, lovely store, but जी not a very expensive store. ओके ठीक है, that is one. जी जब नया सेकंड आई एम कमिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक. हम्म ये जब नया स्टोर खुलते हैं ना, इन्वेस्टर का जोश बहुत ऊपर रहता है, जी उसका स्पिरिट बहुत हाई होता है. हम्म तब वो क्या करता है, बहुत सारा माल खरीद लेता है जो उसको जरूरत नहीं है. बिल्कुल हाँ, वो इतना खुश है, सब कुछ खरीद लिया, हम्म लेकिन वो सब कुछ बिकेगा नहीं उसके दुकान से. बिल्कुल बिल्कुल सही है क्योंकि सही है उसका एक कस्टमर है, उस दुकान का एक स्ट्रेंथ है, उसकी मार्केट में कंपटीशन है, हम्म और उसको इग्नोर करके अगर हम बहुत कुछ खरीद लिया तो हम बहुत हम्म कुछ बेच नहीं पाएंगे. लास्ट में हम्म हमको उसको मार्क डाउन करना पड़ेगा और लॉस में माल बेचना पड़ेगा. जी बिल्कुल सो बिल्कुल सही देयरफॉर ही हैज टू अंडरस्टैंड मर्चेंडाइज रेंज एंड सिलेक्शन, हम्म हम कितना होंगे. हम्म जनरली हम लोग 3 से 4 रोटेशन एवरेज पकड़ के चलते हैं हम्म कि 3 मंथ स्टॉक लेके हम चलेंगे. अगर 1 करोड़ का सेल अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो 30-35 लाख की हमारा स्टॉक होना चाहिए. जी बेसिक गाइडलाइन ये है. जी अगर आप इसको मतलब इसमें लेंगे, कॉस्ट प्राइस में लेंगे, तो इट विल बी 30-40% वॉट एवर इज द मार्जिन, हम्म वो आप रिड्यूस करके देखोगे तो 22-23 लाख रुपया का कॉस्ट होगा, एमआरपी में 30 लाख रुपया होगा, जी लाइक दैट. जी जी सो उसको एक्सीड करके हमने ऐसा भी सिचुएशन देखा कि सेल 1 करोड़ का है, स्टॉक 2 करोड़ का है, जी तो वो तो गया. हम्म अब वो माल कौन लेगा, किसको बेचेंगे, उतना बिल्कुल फुटफॉल है नहीं. कितना भी हम्म मार्क डाउन करो, आप हम्म मार्क डाउन कर सकते हो, लेकिन मार्क डाउन करने से ही फुटफॉल बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल मार्केट हर जगह में सेल चलता है, हर जगह में डिस्काउंट चलता है. हम्म Therefore, he हम्म has to be very careful जी कि on investment on stock. बिल्कुल स्टॉक और रेंटल पे भी उसको नेगोशिएट करो कि कितना कम से कम डिपॉजिट हो जाए, हम्म कम से कम माना पेमेंट टर्म थोड़ा फ्लेक्सिबल हो. हम्म तो ऑल दैट थिंग्स ही हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग. नहीं तो क्या होगा, उसका कैपिटल रोटेशन बंद हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, एंड हम्म विल फेस द फाइनेंशियल क्राइसिस. जी अब फाइनेंशियल क्राइसिस को तो क्या होगा, ही विल बोरो द फंड. ओके बिल्कुल फंड बिल्कुल बोरो करेगा तो कोई मतलब नहीं होता है उसको, जी 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 बिकॉज जब बिजनेस नहीं है हम्म तो बोरोइंग करके फंड बड़ा जनरेट करने का कोई मतलब नहीं है. जी सो ही हैज टू बी विद इन हिज लिमिट. हम्म I know what is my capacity. I will invest X amount of or X crore of money into the business, हम्म and then I will run it. That is ओके what the mission that I give it to everybody, when whoever I have met or I have opened the store. I have hundreds of franchises that I have set up in the country, or हम्म I have opened the new stores. I have always meant one thing कि भाई पैसा कल के लिए बचा के रखो, बिकॉज यू नो व्हाट इज द बिजनेस गोइंग टू बी. हम बोल बोल बड़ा बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन होता वही जो होने का होगा मार्केट प्लेस में. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो हर एक पॉइंट को तो इससे हमारी जिज्ञासाएं और बढ़ रही हैं सर तक कि हम जो है आपसे और अधिक जाने क्योंकि इतने डिटेल में आप मोस्ट बता रहे हैं वेलकम. तो काफी मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए हमें और हमारे थैंक यू सो मच. जी तो व्यूवर्स की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं कि आप जो है गाइडलाइन भी हमें बताएंगे अगर समय की पाबंदी है वैसे तो समय आपका बहुत कीमती है और आप अपना समय दे रहे हैं हमें इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और हम चाहेंगे कि अगर समय मिलता है तो आप गाइडलाइन भी हमें बताएं कि इन्वेस्टमेंट की क्या क्या गाइडलाइन है वो भी हमारे व्यूवर्स के साथ साझा करें नहीं तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहेंगे आपके साथ में क्योंकि काफी ज्यादा नॉलेज आपके पास में है और हम वो लेना चाहेंगे बड़ी खुशी होगी हमें आपसे ये चीजें पूछ के तो यू आर ऑलवेज वेलकम. जी जी सर जी यू एक आर बार हमें ऑलवेज वेलकम. जी थैंक यू जी भास्कर जी हम सेकंड जो है पेन पॉइंट भी है और ये काफी जो है दिक्कत भी आती है काफी लोगों को जब वो रिटेल स्टोर अपना शुरू करते हैं कि वो स्टाफ को कैसे हायर करें
और किस प्रकार से किन किन बातों का ध्यान रखे जब वो स्टाफ को हायर कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए भास्कर जी। It is a very delicate question, you know. मैं अपने एक्सपीरियंस में देखा कि इसमें एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। जी। जितने आदमी ज्वाइन करते हैं वो 6 महीने में दिखा जाता है कि पूरा पूरा का स्टाफ चलेगा। जी जी बिल्कुल। तो one has to be very careful while selecting the people, right? जब वो सिलेक्शन करते हैं तो उसको समझना चाहिए whether he is a career oriented guy or not. उसको आगे क्या दिखता है उसको। जी। He can start at a lower level, does not matter, but उसको आगे क्या दिखता है। Not necessarily that boy has to work lifetime in that store. No, that owner has to understand it. कि हम जिसको रिक्रूट कर रहे हैं ये सारा जिंदगी हमारे दुकान में काम करने के लिए नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। To what extent I can give him the good career or he can make his career. इसके एडवांटेज क्या है हम लोग देखा है कि जो लड़का छोड़ के गया दूसरे ब्रांड में जाके पुराना कंपनी का तारीफ ही किया है कि मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने सीख के आया। जी। That speaks that boy is open to learn. So that is point one. That जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं is he open to learn? One. Is he ready to make his career? Two. That is question two. Apart from age, you can feel groom and all that thing. You know, ये तो बेसिक चीज है ही है। Then देखो कि इसका एटीट्यूड क्या है, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल एरिया जिसका हमने एक कॉलेज में जब पढ़ाते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स लार्ज फॉर्मेट स्टोर पे जाके फ्लोर पे काम करता था। तो उसको मैनेजर ने बोला ये आलू का बोरा है, ये बोरा यहाँ से हटा के वहां रखो। तो बोलता मैं तो एमबीए स्टूडेंट हूँ और मैं तो आलू का बोरा में हाथ लगाऊंगा। दैट मीन्स इसके एटीट्यूड नहीं है मेहनत करने का। जी। उसको he cannot connect himself with the product and customer। ठीक है, उसके साथ वो अपने को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको आलू दिख रहा है। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है तो चलेगा नहीं, he will run away। जी। लेकिन जो बंदा स्माइलिंगली उसको उठाएगा ले जाएगा साफ करेगा, हम लोग शू इंडस्ट्री में देखा, शू इंडस्ट्री में भी देखा, बहुत बंदा है तो मैं जूता में हाथ नहीं देता हूँ, तो गया काम से। और हम लोग ये भी देखा कि ब्राह्मण है कि क्या है, बट ही लव्स हिज प्रोफेशन, ही लव्स कस्टमर, ही लव्स जूता, वो सफाई कर रहा है, काम कर रहा है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री। जी। सो he has to, while recruiting, he has to see that you know ये बंदा जो है ये आगे का घोड़ा है, ये दौड़ेगा। जी बिल्कुल। और थोड़ा अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी इंटीग्रिटी चेक कर, थोड़ा सा इंटीग्रिटी थोड़ा सा देख ले को ही इज ओपन टू लर्न, टू दैट ही हैज अ डिजायर टू ग्रो इन हिज करियर एंड ही हैज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। बस। जी जी भास्कर जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को जो है हायर करने से पहले, कौन कौन से पैरामीटर पे हमें चेक करना चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा भास्कर जी कि ये जो रिटेल स्टोर के अंदर अपसेल क्रॉस सेल ये क्या चीज होती है और हम इसका यूज करके कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ये एक्चुअली सेलिंग टेक्निक है। ये अपसेल, क्रॉस सेल, बास्केट साइज, ठीक है जी। पहले तो ये इसका फंडामेंटल मुद्दा यह है कि हम धंधा कैसे ऊपर में ले जाए। ओके। आई विल गिव यू ऑल दिस बाय एग्जांपल। जी सर, जी श्योर। पहले हम बताता हूँ कि अपसेल क्या होता है। जी। अपसेल यही होता है कि मान लो कस्टमर दुकान में शर्ट लेने के लिए आया,
So there are shirts 800 रुपया की भी है, 1000 रुपया की भी है, 1200 को भी है, 1600 को भी है, करेक्ट जी। तो द एंट्री पॉइंट इज मान लो कि 800 रुपीज फॉर द शर्ट, करेक्ट। अपसेल ये होता है कि जब इससे ऊपर का जो कस्टमर सिलेक्ट कर रहा है, मान लो 800 रुपए का शर्ट सिलेक्ट कर रहा है और उसको 1200 रुपए का शर्ट बेचा है, दैट मीन्स ही हैज डन अपसेल, he has done upsell by 400 rupees, थोड़ा सा हायर प्राइस मर्चेंडाइज उसने कस्टमर को बेचा फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट ही हैज सिलेक्टेड और माइट हैव सिलेक्टेड। ओके, तो ये जो 400 रुपया की इंक्रीमेंटल सेल, दैट इज द अपसेल। जी, हो गया जी। नाउ आई कम टू क्रॉस सेल। ओके। क्रॉस सेल का फंडा सिंपल है कि कस्टमर बाइज वन, कस्टमर बाइज a shirt, a printed shirt, looks like a casual look, Friday dressing or Saturday dressing. तो स्टाफ को दिखता है कि शायद वो कस्टमर को बोलता है कि सर इसके साथ आपको पेयर ऑफ जीन्स काफी अच्छा लगेगा, नाइस शर्ट, व्हाई डोंट यू गो फॉर ए कॉटन ट्राउजर और ए पेयर ऑफ जीन्स। जी। तो कस्टमर को लगता है कि नहीं तो बात सही कर रहा है तो ले लेना चाहिए। जी, जी। और किसी ने वॉकिंग शू खरीदा तो आपने उसको ट्रैक पैंट दिया, टी शर्ट दिया, बिकॉज ट्रैक पैंट, टी शर्ट, socks, wristband, headband, these are connected as an athletic kind of a product. So therefore the people who is buying a jogging shoe or a running shoe, kind of a shoe, so it relates to the athletic world of activities. Okay. So therefore staff has to then recommend the athletic product, which is synonymous with the product that he is buying. Okay. जी, Clear? जी, बिल्कुल क्लियर सर, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। इट्स लाइक दैट ओनली। मान लीजिए हमने एक ट्रैवल बैग लिया, तो ट्रैवल बैग लिया तो मतलब हमको जूता भी देंगे, कैप भी लगेगा, एक सनग्लास भी लग सकता है, जी, जी। ऑल दैट काइंड ऑफ a stuff that goes with the travel bag. So that is all about the cross sell. I also give, ये सब बिजनेस बढ़ाने का काम है, which is done by the staff. जी। अभी देखो इसमें I will link it and when I close it I will link it with the staff selection also while I close it. उसके बाद आपके पास आएगा कि बास्केट साइज। बास्केट साइज इज नथिंग बट एक कस्टमर एक कैश फ्लो में कितने आइटम खरीदता है वन टाइम। कि एक कस्टमर आए, एक आइटम खरीदा, बास्केट साइज 1, 5 आइटम खरीदा, बास्केट साइज 5, सिंपल बात जी। 5 आइटम खरीदा तो सेल का वैल्यू ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा, मर्चेंडाइज ज्यादा बिकेगा। एक बिका तो एक मर्चेंडाइज क्लियर हुआ, 5 बिका तो 5 मर्चेंडाइज क्लियर हुआ। जी, जी। तो 5 इज ऑलवेज हायर देन 1। बट हाउ डिड इट हैपन? सवाल ये है, तो वी ऑल नो कि 5 1 से ज्यादा होता है, बट हाउ डिड इट हैपन? करना क्या है स्टाफ? जी। मान लो बरसात का समय में मम्मी जूते के दुकान में आके बोलता है कि हमारा बेटा को एक स्कूल शू चाहिए, तो लड़का को इमीडिएट समझना चाहिए कि ये स्कूल शू के साथ हमको स्कूल बैग, वाटर बॉटल, रेन कोट, अम्ब्रेला, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स, सॉक्स, वॉकिंग शू, ये सब कुछ एज अ बास्केट आई कैन ऑफर टू कस्टमर, राइट? तो इसमें एडवांटेज क्या है मम्मी को कि शी डिड नॉट गो टू स्टोर और शॉप टू शॉप to buy, item by item, item by item. It saves time. इस कस्टमर का बेनिफिट भी है, it saves time. Under one umbrella or a roof, he gets or she gets all the merchandise that she's looking for. So that is the advantage of the basket size. So upsell, cross sell, basket size, it is all about selling more items or adding value. Basket size is adding value by माने एडिंग सेल्स बाय एडिंग वैल्यूज। जी। क्योंकि ये सब वैल्यू एडेड
प्रोडक्ट है कि अम्ब्रेला, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब इसके साथ जाएगा. सो एडिंग वैल्यूज टू योर टोटल परचेज. जी. इसके पहले हमने बोला कि ये क्रॉस सेल, इसमें भी वैल्यू एडिशन है. इसके पहले तो अपसेल, इसमें भी वैल्यू एडिशन है. Why people will spend 400 rupees more unless there is a value addition? So therefore, staff has to communicate what is that value addition. क्या यह wrinkle free है, या easy to wear है, या color fast है? What is that value addition? That he has to explain it to the customer. Then the selling becomes easy. Now coming back to the selection of staff, this is what is the attitude of the staff, that customer are our guest, our own family member. I have no hesitation to sell him or her more. I know there is nothing wrong in recommending one after another product. Why not I offer my more merchandise that I have in the stores? That's a clear attitude factor of the staff. जी जी जी. जो स्टाफ, इसीलिए सिलेक्शन भी वैसे समझ के करना चाहिए कि इतने सारे आइटम है, तुम कितने आइटम बेचोगे. अगर स्टाफ बोलते हैं तो हम सब बेच देंगे, हम सारे आइटम बेचेंगे, तो यू गिव वन इंडिकेशन कि हाँ इसका एटीट्यूड ठीक ठाक है. जी. कोई बोलेगा हम तो वही देंगे जो हमसे मांगेगा, नहीं मांगेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ. मांगा ही नहीं, मैं बेचा ही नहीं, मैं क्या कर. जी. तो गया दुकान, one day he has to close down the business. So this is what makes lot of difference. Upsell, cross sell, basket size, add-on sale, basically यही है. जी सर. तो बहुत बढ़िया आंसर दिया सर आपने, एग्जाम्पल के साथ समझाते हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है. और सर और बड़े सिंपल भाषा में आप हमें समझा रहे हैं, बड़े सिंपल शब्दों में. तो भास्कर जी हमें ये बताएं कि अपना जो है इन्वेंट्री विजिबिलिटी के लिए क्या किया जा सकता है, कि एक स्टोर एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए और कैसे वो जो है अपने डेड स्टॉक से बच सके, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी समस्या होती है रिटेल स्टोर के अंदर डेड स्टॉक की. क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया कि क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा जोश में होता है कि एंटरप्रेन्योर के, वो सब कुछ खरीद लेता है अपने परचेज में कि मैं ये भी खरीद लूं, मैं वो भी खरीद लूं, और एक्सेस परचेज हो जाए. तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है और कैसे अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है? सिंपल सा फैक्टर ये है कि देखिए जो दिखता है वो बिकता है. जी सर, बिल्कुल. और जो दिखते नहीं है वो बिकते भी नहीं. जी, मैं इसमें एक छोटी सी लाइन और जोड़ना चाहूंगा भास्कर जी, कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वही मार्केट में टिकता है. That's right. जी सर. So first of all that all that range that the retailer has, by SKU, by all SKUs, he has to display the entire product range. जी. तो उसका जो शेल्फ है, वो शेल्फ भी उसी तरीका से बनना चाहिए. कस्टमर को पता लग जाता है कि सोप्स या पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट है, इसका शेल्फ ऐसा होता है, गारमेंट का शेल्फ ऐसा होता है, एरिएटेड ड्रिंक्स होगा तो उसका रेफ्रिजरेटर ऐसा होता है, नॉनवेज आइटम होगा तो उसका डीप फ्रीज ऐसा होता है. So one is that indicator of the availability of the merchandise, and he has to give the entire exposure of the merchandise that he has, the stock. उसका फेस लिफ्ट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑफर पैक है तो ऑफर डिस्प्ले में होना चाहिए, डैंगलर पोस्टर्स जो भी है स्टोर के अंदर में उसका होना चाहिए. अगर बाय वन गेट वन फ्री ऑल दैट काइंड ऑफ स्टाफ है तो उसका प्रमोशन होना चाहिए. कोई स्पेशल गिफ्ट है, स्कीम है, या अगर डिटर्जेंट के साथ मान लो बकेट है या कंटेनर है, चाय के साथ बिस्किट है, all that product that he has in offer, और टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश हो सकता है. तो all that offer that he has for the consumer must make presentable to the store so that the customer को दिखे ये चीज. So higher is the exposure of those offer, higher is the benefit for the customer.
अगर हम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो कस्टमर यहाँ से डिटर्जेंट लेगा और कहीं पे जाके कंटेनर खरीदेगा, जी मान जी लीजिए। और बिल्कुल। बाद में दुकान में आके देखेगा कि अरे ये तो कंटेनर फ्री में है, हम्म हमको तो मिला नहीं। हम्म तो देयर इज अ लॉस ऑफ रेपुटेशन इन दैट केस फॉर द रिटेलर। यस तो यस दैट यस। इज वन, अच्छा डिस्प्ले हम्म करो, स्टाफ को बोलो रिकमेंड करो, हम्म प्रमोशन कैंपेन जो है उसको अच्छा से देखे, हम्म यू नो, मर्चेंडाइज ऑफ द डे और मर्चेंडाइज ऑफ द वीक, ये सब प्रमोशन पे आना चाहिए। कभी कभी स्टाफ का कॉन्टेस्ट भी बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द हम्म प्रोडक्ट। हम्म अब डेट स्टॉक के बारे में अगर हम आते हैं, डेट स्टॉक होता क्यों है? होता इसलिए है कि मान लो अगर ये सीजनल प्रोडक्ट है, हम्म विंटर का प्रोडक्ट है और विंटर में हम बेच नहीं पाए, हम्म I have to carry the winter product for one more year यस यस for यस the next winter to come, and then I can liquidate it. यस। That is, I mean, the seasonal product has one such problem. या Then selection of merchandise, हम्म जो हम पहले बोल रहे थे हम्म कि उसको लगता है हम बेच पाएंगे, वो हम्म लेता है लेकिन हम्म बिकता नहीं है। जी। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए हम्म हम डिटर्जेंट रखते हैं दुकान में, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक। हम्म अगर हम 5 किलो का भी पैकेट रखेंगे, 20 किलो का भी पैकेट रखेंगे, तो बिकेगा क्या? नहीं। बट ही बाइज इट एंड देन कांट सेल इट, हम्म सो ही हैज टू रेस्ट्रिक्ट his buying mood. One, he should buy what he needs to the extent, इतना उसको खरीदना चाहिए। जी। के बाद क्या होता है कि गोडाउन में माल रह जाता है, उसका सिस्टम शो नहीं करता है कि हम्म मर्चेंडाइज है बोल के। हम्म तो सिस्टम मर्चेंडाइज दिखाता नहीं है तो सेल भी नहीं दिखाता है, गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, हम्म एक दिन बाहर आएगा तो वो सेलेबल नहीं रहेगा। जी। हम लोग के साथ हुआ, अरे ये माल है अभी भी बिका नहीं। जी। आजकल तो एमआईएस आ गया, टेक्नोलॉजी बता देगा कि व्हाट यू हैव इन्वेंटरी एंड व्हाट इज सेलिंग एंड व्हाट इज नॉट सेलिंग। हम्म तो नॉट सेलिंग में क्या होता है कि एज एनालिसिस होता है। व्हाट इज एज एनालिसिस? कि कौन माल 3 महीना में कितना बिका, 6 महीना में कितना बिका, साल भर में कितना बिका। हम्म साल भर के बाद भी जो माल रह जाता है वो और कभी बिकेगा नहीं, समझे कि? बिकॉज जी। एक साल बहुत कम होता है। इसीलिए आप देखोगे हर एक 6 महीना में एंड ऑफ सीजन सेल लग जाता है। हम्म हर एक मॉल में या हाई स्ट्रीट में या कोई भी ब्रांड में एंड ऑफ सीजन हो जाता है। व्हाई? ऑल लेफ्ट ओवर मर्चेंडाइज दे हैव टू क्लियर इट आउट from the stock, from the shelf, so that there is a space available now for the new merchandise to come in. जी। So it is a continuous, what you call monitoring of the merchandise, कि क्या माल नहीं बिक रहा है। जो माल नहीं बिक रहा है तो उसको स्पॉट आउट करके निकाल के डिस्काउंटिंग कर दो, या बल्क पे उसको डिस्काउंटिंग कर दीजिए, या टैग ऑन कर दीजिए 1+1 or seasonal discount, something. He cannot keep those merchandise in the store because the merchandise not selling is a money not selling, money not used. उसको खरीदने में पैसा तो लगा ना उसको, जी 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 वो बिल्कुल। तो रोटेशन पे नहीं है, so money is blocked. हम्म Second, the space is also blocked. या बिल्कुल। Retail space is very expensive. हम्म और वहां पे हम डेड स्टॉक रखे जिसका कोई ये नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो एक तो हम रुपया ब्लॉक किया, ऊपर से मैंने इन टर्म्स ऑफ स्पेस ब्लॉक किया, जी विच इज अगेन ए ब्लॉकिंग ऑफ मनी बिकॉज हम रेंट तो पे करते ही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 50 स्क्वायर फीट एरिया भी मान लीजिए डेड स्टॉक दे के बना के रखा हूँ, तो विच कुड बी 15% ऑफ द टोटल स्पेस कॉस्ट, विच इज साल भर में कितना हो गया? बहुत हो गया। सो देयरफॉर प्लस आपके इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, पिलफरेज होगा, लॉस ऑफ मर्चेंडाइज होगा, बहुत कुछ होगा। जी तो इस सब से बचने के लिए बेस्ट थिंग इज द मॉनिटर व्हाट इज सेलिंग, व्हाट इज नॉट सेलिंग, व्हाट इज नॉट सेलिंग, मार्क इट डाउन, डिस्काउंट इट, टैग इट, क्लियर इट, और नेक्स्ट टाइम में ऑर्डर नहीं करे वो सब। जी जी वो डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी आ जाएगा, आपको हम फ्रांस ले जाएंगे, दुबई ले जाएंगे, जी आप ये माल ले लो, वो माल ले लो,
जी। ठीक है, टू सम एक्सटेंट दोस्ती भी अच्छा है, ट्रेड में दोस्ती होना चाहिए, बट नॉट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस। या बिल्कुल बिल्कुल। जी भास्कर जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ में, जो है हम जो पूछ रहे हैं और जानकारी जैसे जैसे हमें मिल रही है, तो हम तो चाहते हैं कि आपसे बात करते रहें, लेकिन समय की अपनी सीमा है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जी जी सर। तो अभी हम समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए केवल लास्ट आपसे ऐसा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या सजेशन आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं, जो कि रिटेल मार्केट में उतरना चाहते हैं या रिटेल बिजनेस में जो उतरना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे सर आप? द फ्यूचर ऑफ इंडिया रिटेल इज वेरी ब्राइट, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हम्म, दे वांट द बेस्ट थिंग at the minimum time, at the highest level of the quality. okay, So they can very safely go forward हम्म, with the best of the quality, price, हम्म, the reliability, हम्म, and presentability product okay, very safely, हम्म, and they can have then future of their own entrepreneurship, or they can have their own business. जी ये करना चाहिए उन लोग को, जी मतलब दिस इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। एंड टुडे पीपल ऑल्सो लव इट। वो पहला जैसा आज का स्टोर का गेटअप भी चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी सब आ गया। You हम्म, get a good people around, you get a good staff around, you get a lot of support from the bank. हम्म, Customer loves to interact, और हम्म, कस्टमर आजकल knowledgeable है, they travel a lot, they know a lot, they know more than the owner at times, because सारे information आजकल गूगल में मिल जाता है, नेट पे मिल जाता है। So before they buy, they go through this information and then take the final call. जी It helps the investor also to sell. उसको उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम्म, क्योंकि कस्टमर समझ के ही आता है। जी जी So knowing things has made selling easy. हम्म, Knowing things more by customer has made selling easy for the retailer. जी So they can safely go. I love it. And I would love to help them, to set up their store and guide them whatever they want. Right. जी And सर। most जी welcome. जी, थैंक यू भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, जो आप अपना कीमती समय हमारे वर्ष Thank में you so दिया। much, Mukul ji. जी This सर। the interaction has been so enlightening for us. जी और All the best. मैं मिलेंगे आपसे फिर। रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हम इसका पार्ट टू भी जल्दी लेकर आए, जब भी आपको समय हो तो हम लोग जो है फिर से जो है हमारे व्यूवर्स के लिए एक पार्ट टू बनाएं, और भी डीप नॉलेज पे हम लोग डिस्कस करें इस विषय पे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. जी तो All the दोस्तों, best. Most welcome. जी थैंक यू भास्कर जी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।